Good morning, class. I'm here with the paper Supply Chain Management. I've already discussed in my previous video two case studies of this paper because case study is a compulsory question for 20 marks. So that has already been discussed. Also, supply chain analytics के सारे units के practice question I have uploaded there. You can just go and watch. Now here I am uploading the second question from unit number 2, and this will be the practice question again. And the practice question comes for 12 the questions come for 12.5 marks. Okay, you have right. Now let's get started. So the practice question that I have prepared for you is like this. You need to examine the progression of the supply chain management, okay, and its primary challenges. You need to examine the progression of the supply chain, whether the supply chain is progressing and what is the challenges it is facing if it is not progressing. You need to describe the historical progression of the supply chain management, the current obstacles encountered by the contemporary supply chains. Okay, what was the historical progression of the supply chain, and also the current obstacles that it is identifying. Okay. Also, you need to examine the correlation between competitive strategy and supply chain strategy. क्या सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के साथ कोई कोरिलेशन है विद अ फोकस ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ अटेनिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट. Okay, with the focus on the significance of attaining strategic alignment. Strategic alignment मतलब इनका strategically जो है वो align होने चाहिए. So let's see how we can answer this question. सबसे पहले you can give an introduction. So the introduction is the supply chain management. It has evolved significantly over the year, transitioning from fragmented salon approach to a more integrated, है ना. पहले बहुत fragmented था, टूटा टूटा, मतलब supplier was totally like supply department, or you can say the distribution department or the production department, they do not talk or they do not coordinate among each other. They were acting as a separate department. Okay, but now we have integrated them, now we have collaborated with them, and now the whole functions or the departments are taken as one department and are bound in that strategy. Okay, so here we are discussing the historical progress, how it has historically progressed. Okay, so you can just check the first one, the early days from 1950s to late 1970s. If we talk, then this was the time when the supply chain management has emerged as the first. Okay, it has been introduced first time, and the primary focus was on the inventory management, okay, and logistics. So this was the primary function 1950 to 70, and the emphasis was on reducing the cost and improving the efficiency within the individual functions. मैंने बताया ना कि ये जो है मैनेजमेंट मार्केटिंग वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, सप्लायर वाले सारे अलग अलग एक फ्रेगमेंटेड वे में काम करते थे, तो इनका अलग अलग गोल रहता था कि हमें अपना कॉस्ट रिड्यूस करना है. ठीक है. देन 1980 से 1990 की बात की जाए तो एक शिफ्ट आया जहां पर क्या हुआ कि ये सारे फंक्शंस जो हैं सप्लाई चेन के, ये इंटीग्रेट हुए. प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब इंटीग्रेट हो गए. ठीक है. और यहाँ पे ही इसी 1980 टू 1990 के बीच में बात हुई जिट की, जस्ट इन टाइम. यहीं पर बात हुई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोयोटा वगैरह का जो हुआ ना, वो इम्प्रूवमेंट यहीं पर हुआ था, जिसमें क्या हुआ, सारे ऑपरेशंस जो है एक दूसरे से जुड़ गए, कोऑर्डिनेट हो गया और स्ट्रीमलाइन हो गया, सबको सबका पता लगता था, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो मायने रखता था. इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस मायने नहीं रखता. ठीक है. फिर 2000 के बाद जो है ग्लोबलाइजेशन आया, तो 2010 तक क्या रहा कि ग्लोबलाइजेशन रहा, तो सप्लाई चेन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि हम बाहर बाहर भी वी वेर रीचिंग. ठीक है. तो सप्लाई चेन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ओके, स्पैनिंग टू मल्टीपल ज्योग्राफीज, है ना. And thus the company's focus on supply chain visibility. अब कंपनी का फोकस हो गया कि ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाए, है ना, रिस्क को कैसे मैनेज करें और सस्टेनेबिलिटी कैसे करें, ये चैलेंज हो गया. फिर 2010 के बाद डिजिटाइजेशन आ गया. अभी तक की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन आ गया है, जहां हमारे पास अब क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स अवेलेबल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो ये सारा चीज जो आ गया है, इसके कारण अब क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, वेयर वी कैन यूज द रियल टाइम डेटा एंड यूज द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टू मिटिगेट द अपकमिंग रिस्क, है ना.
to enhance the collaboration also with the supply chain partners. So we can use the data analytics, and this is round around the digitization phase. Okay, so this was the historical background. Okay, then what was the primary challenge that the supply chain management was facing earlier before digitization? तो प्रॉब्लम ये था कि डिमांड फोरकास्टिंग, प्रॉपर एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि उस समय आपका इतना ज्यादा डिजिटाइजेशन नहीं था उस टाइम पर, है ना। उस टाइम पर एडवांस मैथमेटिकल टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम्स उतने नहीं लगते थे, क्योंकि आपके पास डेटा एनालिटिक्स नहीं था, डेटा कलेक्शन मेथड नहीं था। दूसरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इशू आता था, बिकॉज वही है कि आपके पास चूंकि डेटा नहीं है, तो आप पीक टाइम को या लीन टाइम को समझ नहीं पा रहे हो, है ना। तीसरा है, सप्लाई चेन विजिबिलिटी भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर एक जो है डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन करता था, प्लस हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम रियल टाइम डेटा ट्रैक कर पाए। रिस्क मैनेजमेंट में भी इशू आता था, क्योंकि हमारे पास ना ही कोई जीआईएस जैसा सॉफ्टवेयर या सैटेलाइट था जिससे कि हम सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या जियो पॉलिटिकल इश्यूज या नेचुरल डिजास्टर को पहले ही प्रोएक्टिवली प्लान कर पाते। उसके बाद सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इशू आता था, बिकॉज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, है ना, रियल टाइम डेटा यूज नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और सारे जो डिपार्टमेंट है वो इंडिविजुअली एक्ट कर रहे थे, तो इस वजह से जो है वो ना ही रिलायबिलिटी पर मतलब हो पा रही थी, ना ही क्वालिटी मेंटेन हो पा रही थी, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी नहीं हो पा रही थी। तो दीज वर द फ्यू challenges that the company earlier before digitization they were facing in the supply chain management. Then if we talk about the correlation between competitive strategy and supply chain strategy, तो competitive strategy और supply chain strategy में क्या correlation है? सबसे पहली बात है कि competitive strategy और supply chain strategy दोनों ही closely मतलब एक लाइन पर ही चलते हैं, with because कि जैसा सप्लाई चेन मैनेज होगा अकॉर्डिंगली, अब सारे डिपार्टमेंट्स तो एक में आ गए, तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, है ना। सो अगर सबसे पहली बात अगर डिस्कस करते कॉस्ट लीडरशिप को लेके, अगर स्ट्रेटेजी है कॉस्ट लीडरशिप बनना, है ना, तो इसमें सप्लाई चेन कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, और कैसे इसको कॉस्ट लीडरशिप मतलब जो इनकी स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन की उसको फुलफिल करने में पूरा ये कर सकता है। बिकॉज अगर आप प्रोडक्शन सोर्सिंग जो है, मतलब जो सप्लायर है, अगर आप उसका वो ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं, देन प्रोडक्शन आपका ऑप्टिमम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है या प्रोसेस जो है वो ऑप्टिमम है, तो इन सब से क्या होगा, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, और अल्टीमेटली आपका क्या होगा, कॉस्ट लो हो जाएगा और कॉम्पिटिटर एज मिलेगा, राइट। दूसरा अगर बात किया जाए, अगर अगर हमारी सेकेंड स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में भी सप्लाई चेन का रोल है, बिकॉज सप्लाई चेन क्या करता है कि आपका जो है वो इन्वेंट्री पर या फिर प्रोडक्शन पर या जो पैकेजिंग है वहां पर क्या कर सकता है कि दे कैन इंश्योर टू गिव डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट और कस्टमाइजेशन to the to that very product to the to satisfy the customer or to gain the loyalty of the customer, है ना। तो वहां पर वो डिफरेंशिएशन जो स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन लाना चाह रहा है, तो उसमें भी सप्लाई चेन हैज अ गुड रोल टू प्ले। ओके, ऑल्सो स्पीड अप डिलीवरी, लाइक प्राइम डिलीवरी है, प्राइम डिलीवरी अगर अमेजन ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि हमें औरों से डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम डिलीवरी, तो प्राइम डिलीवरी में किसका हाथ है, डिलीवरी में हाथ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो द स्ट्रेटेजी एंड सप्लाई चेन नीड टू बी कोरिलेटेड, are actually correlated, are actually they have to sit together and work together. Okay, then focus strategy, if the company wants to have a focus strategy on one specific market segment or niche, then also supply chain can help, because it can help to provide the allocated resources effectively to serve the targeted market efficiently, है ना, जो टारगेट मार्केट है सिर्फ उस पे फोकस करे और उसको एफिशिएंटली और टाइमली बिफोर टाइम डिलीवरी और वॉट एवर प्राइम सर्विसेज दे सके, है ना। तो दिस वे वी कैन से कि चाहे वो कोई भी स्ट्रेटेजी आप बना लो, स्ट्रेटेजी मेकर चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी बना ले, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, इट हैज टू बी कोरिलेटेड विद द सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी एज वेल। ठीक है, तो सप्लाई चेन की जो स्ट्रेटेजी रहेगी, लाइक प्राइम सर्विस है, प्राइम सर्विस एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन ने बना कर दी, इसमें सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, रूट ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन चूजिंग, है ना। तो ये सारा स्ट्रेटेजी जो है ये सप्लाई चेन का रहेगा, और ये दोनों जब कोऑर्डिनेट होंगे तभी उस गोल को आप जो है जो आपने ऑर्गेनाइजेशन ने गोल बनाया उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ
अटेनिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ये जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आप सारे सप्लायर्स और सारे इसको मिलाकर कर रहे हो, तो उसका क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो उसका इंपॉर्टेंस फायदा जो है वो है एफिशिएंसी। मींस अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने जो है एफिशिएंट हो सकते हो, है ना? अगर आप सारे सप्लायर्स को कोलैबोरेट करा दे रहे हो तो आप ओवरऑल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में भी जीतोगे, प्लस आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। दूसरा, कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम दे रहे हो तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। कॉस्ट रिडक्शन भी होगा, बिकॉज देयर विल बी नो ओवर प्रोडक्शन, नो ओवर इन्वेंट्री, नो एक्सेस इन्वेंट्री, है ना? नो वेस्टेज ऑफ लॉजिस्टिक एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस भी होगा, रीजन बीइंग कि you are you are so ready for the market response कि accordingly प्रोडक्शन हाउस भी प्रोड्यूस करेगा, अकॉर्डिंगली इन्वेंटरी भी करेगा, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा, है ना? तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस जो है, that is the main thing that can be done. The next is sustainable competitive advantage. Sustainable competitive advantage का मतलब क्या है कि आपको अगर आप स्ट्रेटेजिकली अलाइन कर लो तो सप्लायर वगैरह से, तो आपको जो सस्टेनेबिलिटी का जो आपको फुलफिल करना है कंप्लायंस, तो वो भी आप बेटर फुलफिल कर पाओगे, आप बेटर सस्टेनेबल अपने आप को दिखा पाओगे। रीजन बीइंग कि जो है आपका आप सप्लायर को अकॉर्डिंगली, पैकेजिंग हाउस को अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्ट कर सकते हो टू कोऑर्डिनेट एंड टू रिड्यूस वेयर एवर, रिड्यूस दिस एनवायरमेंटल डैमेज और दिस वन CO2, all other things wherever possible, है ना? To create the value and differentiation, ठीक है? तो this way strategic alignment can help and is the importance in the supply chain management, है ना? supply chain management में strategic alignment का बहुत जरूरत है, तभी आप एफिशिएंट हो पाओगे, तभी कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, अपना कॉस्ट रिड्यूस कर पाओगे, रिस्पॉन्सिव बन पाओगे टुवर्ड्स द मार्केट एंड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ले पाओगे। Thus, in the conclusion, you can just write that yes, this was the historical progression that we have shown in the first paragraph, and the focus was on competitive advantage, है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ कि the company was facing in the middle of 1980 and 1990, the company was actually facing the demand forecasting, inventory management, ये सारे issues आ रहे थे। फिर after the digitization ये सारे issues कैसे solve होंगे with the help of this IoT and all these things, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई, कॉस्ट रिडक्शन एंड अल्टीमेटली हैविंग अ competitive advantage. Okay, so this way we deal with the questions. Please watch these videos 2 to 3 times, have a proper understanding of this. Even if you don't understand, just write in the comment box, I'll be solving your issue. Okay, so I hope this will be helpful for your revision. Thank you so much. Do go and watch all the previous videos provided, because that is very helpful for your exam. Thank you so much. You can just subscribe the channel to get all the updates of the upcoming videos. Okay, and you can hit the like button if you like the questions and the answers and the way it has been described. Okay, thank you so much. Bye bye.